Myself, Ankit Kumar, the director of Aspire IAS. Now, we all are preparing for personality test, and the first important hurdle is how to fill up this DAF, detailed application form. First part you already filled up, no problem at all, basic information. Now this part really providing you extra edge from other students if you are knowing what type of language, what type of preferences, there is a need to fill up in this particular detailed application form. हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? वी आर कंफ्यूजिंग इन जॉब प्रेफरेंसेस. पता नहीं होता विच जॉब इज बेटर देन अदर जॉब्स एंड वेयर आवर जॉब प्रोस्पेक्ट इज वेरी हाई. If we are not getting the proper IAS, IPS, so which allied services are better than others? Even we are confused in the cadre preferences और एक बार जो मिल गया फिर जीवन भर फंसना पड़ता है. तो in this particular video we are providing you the detailed analysis that which job will be preferred better than others, what would be your proper cadre preferences, even your interest, hobby, medals, leadership qualities and others. So let's begin. In the second part we are also discussing of this video what will be the proper strategy associated with personality test and their preparation, because it is not interview. So never using the word interview, you are preparing right now to appear in the personality test. UPSC is conducting the personality test, not the interviews. So this is the second part where basic information they will automatically providing you place of birth, father, profession and other things. Then your city and everything, your 10th, 12th, graduation, roll number, etc. Now, we are directly come to this particular segment that is known as prize, medal, scholarship, sports, NCC, etc. Position of distinction leadership held in school and colleges, other extracurricular activities, interests such as hobbies. तो इसकी तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, which is very, very important. तो पहला सेक्शन आता है हमारा prize, medals and scholarship. Now, don't write because this section is providing you the option to fill up the gap. Prize का मतलब होता है in which you are feeling confident, it shows your overall capabilities. तो prize, medal, scholarship, जो भी आपने scholarship ली हो, उस सबको आप यहाँ पर pin point कर सकते हैं. तो prize में 10th class onwards, उससे पहले के मत डालना. 10th, 12th, graduation, any prize, first, second, third or any certificate also you can mention in a confident manner. अब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रखता है, कोई कम रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Even you are not in a condition to write anything, make it blank. बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आज तक कोई प्राइज नहीं जीता, जरूरी कोई ना प्राइज जीतना होता है. स्कॉलरशिप ने तब भी आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बट हियर बी जेन्युइन. देन स्पोर्ट्स एंड एनसीसी. नाउ हियर दे आर नॉट मेंशनिंग द मेडल शुड बी देयर. आपके पास इसका मेडल होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा. दे आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग. तो अंडर द स्पोर्ट्स एनसीसी इफ यू इवन लाइक एंड प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, वो आप स्पोर्ट्स भरो. लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए दैट यू आर लैकिंग फुटबॉल और आपका फुटबॉल निकला हुआ है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस थिंग. इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा यू आर फेकिंग. तो इफ यू आर फिलिंग अप सम स्पोर्ट्स, योर बॉडी शुड लुक लाइक दैट यस यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट्स. अब जैसे मेरा पेट निकला हुआ है तो मैं अगर आज स्पोर्ट्स भर के बाहर पहुंच जाऊंगा वहां पर, वो कहेंगे ये देखो पागल. तो write those sports which you are really playing and right now you are also playing. NCC etc का मतलब बचपन में in our childhood days we participated in scout and guide, उसमें लिख सकते हो. Even we participated in some NCC camps or some other camps, वो सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं. And it never required any type of certificates. Then पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस. अब ये बहुत ही जबरदस्त हमारा क्या है एक सेक्शन है, दैट इज पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस. बच्चे इसमें लिखाते हैं हेड गर्ल, हेड बॉय, मॉनिटर्स. बिल्कुल मत लिख देना. पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, अगेन दिस पर्टिकुलर कैप्शन डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स. तो आपने कोई भी ऐसी पोजीशन करी हो जिसमें आपको लगता हो कि आपने कुछ लीडरशिप में योगदान दिया. फॉर एग्जाम्पल, helping the school team to organizing some fest, helping some NGOs in organizing some blood camps, some movement which is associated with some social, that is a activism or something. Even you are leading some tourist group, traveling group, some of your family members in some of the particular location, वो यहाँ पर आप भर सकते हैं. But again, language would be short, छोटे words होने चाहिए and it should be attractive. अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड हॉबीज. फर्स्ट देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थ्री डिफरेंट थिंग्स. नंबर वन, हॉबी. हॉबी मीन्स इवन वी आर टायर्ड.
not able to do any work, even if we are practicing, that is our hobby. Hobby means which regenerate us from inside and we really like from our soul. Singing is my hobby because I'm not a good singer, but in the bathroom daily I am loving this song. When I am listening some song, I am feeling regenerated from my soul. That is your hobby. Interest means you are having some interest to know that particular area. For some people, their interest is watching some movie. For some people, watching some documentaries. For some people, their interest is reading the autobiography. ये interest है. We can't practice interest when we are tired. Difference समझ रहे हो ना? We can't practice when we are tired. अब इसका मतलब ये नहीं तुम अलग से लिखो hobby is this, interest is this, extra curricular. They will identify and they will ask क्या है आपको तब पता होना चाहिए what is my interest. Extracurricular activities means whole day we are reading in a homogeneous manner. Now this particular type of thing can be break through heterogeneous activity by the name of extracurricular activity. मतलब वो activity जो हम curriculum से अलग करते हैं. The activity which we are doing extra from our curriculum is known as extracurricular activity. ये jogging हो सकता है, running हो सकता है, watching movies हो सकता है, extracurricular activity में से swimming हो सकता है. Anything we can do as a part of extracurricular activity. भरना क्या चाहिए? बहुत सारे बच्चे भर देते हैं सिंगिंग, क्राफ्ट. सिंगिंग में स्पेसिफिक भरो. सिंगिंग इज अ ब्रॉड एरिया. आर यू गुड इन ट्रेडिशनल सिंगिंग, कर्नाटिक सिंगिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक और सिंगिंग? वो भरो. देन ओनली दे विल पिक अप द क्वेश्चंस. हमें लगता है कि वी कैन फेक इन दिस. आप वो भरो जो आप प्रैक्टिस करते थे या करते हो, रिवाइव हो जाता है. कुकिंग, यस, तो कुकिंग में भी कौन सा कुकिंग सबसे अच्छा लगता है? साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन? दे विल आस्क सम इंग्रेडिएंट्स, दे विल आस्क समथिंग. न्यूज़पेपर रीडिंग, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, इसमें स्पेसिफिक हो जाओ. IR एनालिसिस, डूइंग द इंटरनेशनल रिलेशन देयर एनालिसिस, रीडिंग अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, रीडिंग अबाउट सोशल इश्यूज. अब वो आपसे इसमें ऑथर पूछेंगे एडिटोरियल्स के. नाउ यू आर मेकिंग देम द चांस दैट दे विल आस्क अकॉर्डिंग टू यू. तो इंटरव्यू में दो चीजें होती हैं, या तो वो आपको राइट करेंगे या आप उनको राइट करेंगे. दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर ओन इंटरव्यू इन योर हैंड्स. ये चीज यहां पर ये दर्शाती है. तो अगर किसी बच्चे की कोई हॉबी नहीं है तो सम आर वेरी प्रोमिनेंट जो हम करते हैं. ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में डेस्टिनेशन नहीं होता है. यू कैन एनी टाइम fill up the hobby by the name of traveling. We all are traveling from our places to Delhi, from our places to some other place. Traveling is a very good hobby. ट्रैवलिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं? टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल. चाय वाला, नाश्ते वाला पूछ लेते हैं भैया कैसे हो, सुनते हैं. तो लिसनिंग एंड टॉकिंग विद पीपल और स्ट्रेंजर्स, कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, ये उसी के साथ एसोसिएट हो गया. देन अनदर इंपॉर्टेंट हॉबी, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसी के अंदर से बहुत सारी हॉबीज और इंटरेस्ट जनरेट हो सकते हैं. वोकैबुलरी, रीडिंग द एनालिसिस ऑफ द सोशल इश्यूज, IR, ये सब आप इसके अंदर भर सकते हैं. तो whenever you are writing something, be specific. For example, surfing the internet, बहुत कॉमन देखता हूं मैं. In the last 18 years, I'm watching this peculiar, that's a hobby. Gym, sports, painting, इनको स्पेसिफिक कर दीजिए एंड प्रायोरिटी सेट कीजिए. पहले नंबर पे क्या बढ़ना है, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या. तो फर्स्ट नंबर वो होना चाहिए विच इज योर कोर इंटरेस्ट और हॉबी, ताकि आप उसको अच्छे से बोल सके. और लास्ट में वो आना चाहिए जो आपका उतना अच्छा कोर नहीं है. तो आउट ऑफ दिस 4 सेक्शन, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द नेम ऑफ अदर करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट. इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस. Zone 1, 2, 3, 4, 5. This cadre modification was there before 4 years, and now the people are not knowing where to serve. If you really want progression in your career, please choose those states where the workload is high, diversification of the work is high, and 100% because of this your promotion is little bit good. Even you are getting central deputation and higher post in the central government. लोग कहते हैं बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड क्यों भरें, यहां पर तो क्राइम है, हम कैसे काम करेंगे, स्पेशली द स्टूडेंट फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स. रॉन्ग नोशन. यू आर IAS ऑफिसर, यू विल सिलेक्ट एज एन IAS ऑफिसर. आपको सिक्योरिटी मिलती है, सब मिलता है, एंड यू आर हैविंग द ऑटोनॉमी टू वर्क टुवर्ड्स द पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो वेरी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल यू आर प्रेफरिंग द ओवरऑल कैडर प्रेफरेंसेस. खाली बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, गड़बड़ हो जाती है. फर्स्ट पार्ट में कुछ बच्चों ने इनको खाली छोड़ दिया,
एंड दिस इज अ रूल, अगर सारी जॉब भर जाती हैं फिर जो खाली बचता है दे कैन रैंडमली प्रोवाइडिंग यू, एट दैट टाइम यू विल गेट अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम आल्सो, सो डोंट टेक द रिस्क, फिल अप ईच एंड एवरी ऑप्शन, दिस इज अ फर्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई साइड. नाउ फर्स्ट प्रेफर दोज वेयर यू आर हैविंग द फर्स्ट प्रेफरेंस. तो सबसे पहले तो आप वही भरिए जहां पर आपकी सबसे पहले क्या है, प्रेफरेंस है, इसके अलावा आप कुछ नहीं भरेंगे. तो सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस जो आपका स्टेट हो, मदर स्टेट हो, लेकिन इफ यू आर फ्रॉम दैट इज अ नदर्न स्टेट, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड कम इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज बी, मैं ऐसे ही बता देता हूं. तो द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज बी, दैट इज दिस वन, दैट इज अ जोन 2. अब इसके अंदर भी यू कैन पुट अप फर्स्ट वन 111. तो पहला आपका इसमें उत्तर प्रदेश होना चाहिए, सेकंड वन बिहार, थर्ड वन झारखंड और उड़ीसा. मैं जो अगर गाइड करूंगा देन थर्ड वन शुड बी झारखंड एंड द फोर्थ वन शुड बी उड़ीसा. उत्तर प्रदेश बिगर स्टेट, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क, एंड हियर द प्रोग्रेशन इज वेरी हाई. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हायर ऑफिसर्स की लिस्ट देखेंगे, मैक्सिमम आपको उत्तर प्रदेश कैडर से ही लोग मिलेंगे. सेकंड नंबर पे आप लोगों को भरना चाहिए, दैट इज जोन 1. इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस एगमुट का आना चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू विल सर्व इन दिल्ली. इसमें आपका गोवा आता है, इसमें आपका यूटीज ऑफ अंडमान निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग. सेकंड नंबर पर फिल अप द राजस्थान, थर्ड नंबर पर हरियाणा, फोर्थ उत्तराखंड, फिफ्थ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्स्थ पंजाब. पंजाब आखिर में क्यों? पंजाब इज अ स्टेट जहां स्टेट्स गवर्नमेंट के सर्विसेज के बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, एंड समहाउ इट इज नॉट दैट मच गुड स्टेट टू वर्क अपॉन. तो इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एगमुट. सेकंड नंबर पे आप भरेंगे राजस्थान, थर्ड नंबर पे आप भरेंगे हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. हिमाचल उत्तराखंड ठंडी स्टेट है, दैट मीन्स ठंड रहती है, क्राइम रेट उतना नहीं है, काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है. तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कूल रहना चाहते हैं, ज्यादा आपको काम लोड से मतलब नहीं है, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाइए. लेकिन आप अर्बन लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, है ना, सिनेमा भी नहीं मिलेगा कई बार देखने के लिए इफ यू आर पोस्टेड ऑन द आउटस्कर्ट. थर्ड नंबर पे आपको जो जोन भरना चाहिए दैट इज जोन 5. तो जोन 5 का नंबर आपका आना चाहिए, जोन 5 या जोन 3 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया देन जोन 3. जोन 3 में बेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश पहले आता था यूपी के सेकंड नंबर पर, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फिल्ड अप मध्य प्रदेश सेकंड टू द यूपी. तो यहां पर आपका पहला चॉइस मध्य प्रदेश होना चाहिए, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ गुजरात. बिजनेसमैन लोग हैं, उन्हें आईएएस से क्या मतलब, कौन तू, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो गुजरात आपका इसमें लास्ट प्रेफरेंस होना चाहिए और पहला प्रेफरेंस आपका मध्य प्रदेश जाना चाहिए. इन अ जोन 5 योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज वुड बी दैट इज कर्नाटका, सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश क्योंकि नया स्टेट बना है, काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ तमिलनाडु और केरला सबसे आखिर में. एंड मे बी यू ऑल आर नोइंग केरला क्यों आखिर में भरना है, बिकॉज छोटा स्टेट है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, एंड समहाउ यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू वर्क फ्रीली. सबसे आखिरी में बच्चा जोन 4 ही भरता है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. हियर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज वुड बी असम एंड मेघालय, सेकंड सिक्किम, वेरी वंडरफुल स्टेट टू सर्व, देन मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और सबसे आखिरी में नागालैंड. तो दिस वुड बी योर प्रेफरेंस रिगार्डिंग द कैडर प्रेफरेंसेस. इफ यू आर हैविंग इन डाउट, नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उस पर मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर्स. नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर जोन प्रेफरेंसेस, नाउ द जॉब एलोकेशन प्रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. ये जिंदगी है आपकी, इसी में आपने पूरा ताकत लगाई है ये बनने के लिए. ये सबसे बढ़िया जॉब है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ये मिल जाए तो बात ही क्या है, दिक्कत है 90 जॉब्स ही आती हैं और जनरल वालों के लिए 40, 45, 50 तक खत्म हो जाती हैं. तो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड ऑलवेज विद आईएएस. इसी के लिए हमने कर्म किया, इसी के लिए हमने जान लगाई है, इसी के लिए हमने सेक्रीफाइस किए. सेकेंड नंबर पर अब कंफ्यूज होते हैं लोग, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस. इफ यू आर हैविंग कॉमर्स बैकग्राउंड, सीए बैकग्राउंड, then please fill up Indian Revenue Services, also indirect taxes, custom. तो अब आप इनकम टैक्स को पहले नहीं भरेंगे, पहले आप कस्टम ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस को भरेंगे. बूमिंग फील्ड, मोर रेवेन्यूज, कस्टम इज प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म, स्मगलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रोस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इज फार बेटर देन इनकम टैक्स.
तो अब लोगों का ऑटोमेटिक चॉइस हो गया दैट दे आर मूविंग टुवर्ड जीएसटी मोर देन द इनकम टैक्स. थर्ड चॉइस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. बट इफ योर बैकग्राउंड is not commerce, you really want to serve to prevent the crimes, law and order, second option is always be IPS, Indian Police Services. अब IFS में लोग कंफ्यूज रहते हैं, especially women and boys, those who really do not want to serve outside. Never degrade the overall, that is a level of the job. It is better not to fill up the IFS on the 8th or 6th position, fill up 00. IFS वही बच्चा भरे who want to learn foreign language, who really want to serve in the foreign embassies as a diplomat, who really want to serve half of their life outside India. And in this job, there is a minimum contact with the civilians except those people who are living as Indians outside in the form of NRI, non-resident Indians. Otherwise, IFS में आप थोड़ा सा परेशान और निराश हो सकते हो. And always remember one thing, it is better to fill up 0 rather than position 7 or 8 to the IFS. तो इन 5 जॉब के बाद हमारी रियल दिक्कत स्टार्ट होती है, व्हाट टू फिल फर्स्ट. सम पीपल आर सेइंग IRMS एंड अदर थिंग. तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं. आफ्टर फिलिंग अप IAS, IPS, IFS, IRS कस्टम, 5 जॉब के बाद सबसे बढ़िया जॉब है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आर मेकिंग यू इन द अर्बन एरियाज. ग्रुप A services. Workload is not that much high. You are directly coming under the CAG office, that is the Comptroller Auditor General of India. इसके बाद आपको बढ़ना चाहिए IRMS. आफ्टर IAS एंड IPS you are getting the maximum workforce under you, 400 to 800 employees, and you can bring the changes. If you are under IRMS, after some time deputation में आप Ministry of Shipping जा सकते हैं, Ministry of Transportation जा सकते हैं, so many ministry, and the future of India's logistic infrastructure, वहां पर IRMS के बच्चों को 100% बुलाया जाएगा. तो central deputation is one of the important part. इन 2 जॉब के बाद यू पीपल कैन मूव टूवर्ड्स दिस जॉब, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है या मिस इंफॉर्मेशन है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस. इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस इज लाइक अ DM ओनली, IAS ऑफिसर ओनली, बट इन अ कंटोनमेंट एरिया. तो आप कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए किसका काम करेंगे? एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. डेपुटेशन वेरी इजी टू गेट आफ्टर द IDES, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस. अब इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के बाद आता है विच जॉब वी कैन फिल्ड अप. इफ यू आर हैविंग कॉमर्स बैकग्राउंड, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस. इफ नॉट, देन प्लीज मूव टुवर्ड्स इंडियन कॉर्पोरेट सर्विसेज. तो आपका एक जॉब है जिसका नाम है दैट इज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्री लेवल पोजीशन इज वेरी गुड, डायरेक्टर लेवल की पोजीशन होती है. इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेटाइजेशन, PSU कल्चर से हम बाहर निकल रहे हैं. आफ्टर 4-5 years दिस जॉब्स इज इक्विवेलेंट टू IRS. So if you really want to serve in allied jobs in a good manner, then please fill up on 7th, 8th position Indian Corporate Law Services. Then Indian Defense Account Service and Indian Railway Protection Force Services. IRPS को हमने IRMS में नहीं डाला. They are designated forces services after IPS. तो अगर कोई बच्चा फोर्स यूनिफॉर्म के पीछे थोड़ा सा पागल है and he really want to serve in a good manner, then please fill up the Indian Railway पुलिस फोर्स सर्विसेज, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे. देन प्लीज कम टू डैनिक्स एंड डैनिप्स. ग्रुप B लिखा हुआ है, बट दे आर वेरी गुड सर्विसेज बिकॉज दिस स्टेट्स आर नॉट कंडक्टिंग देयर PCS एग्जामिनेशन. प्रोग्रेशन प्रमोशन आर वेरी गुड. देन यू पीपल कैन चूज फॉर डैनिक्स एंड डैनिप्स. पहले आप भरेंगे ऑब्वियसली डैनिक्स, उसके बाद आप डैनिप्स भर सकते हैं. देन यू कैन फिल्ड अप द इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट फाइनेंस सर्विसेज. इन दोनों में से एक के बाद, डैनिक्स के बाद ये भरेंगे आप, दैट इज इंडियन पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज. देन इंडियन पोस्ट सर्विसेज, दोनों अलग अलग हैं. इंडियन पोस्टल सर्विसेज को इंडियन बिलियर्ड सर्विसेज भी बोलते हैं. काम कम है और पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है. इंडियन पोस्ट ऑफिस में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके सर्व करते हैं. फिर इसके बाद कॉर्पोरेट ये वाली सर्विसेज भर सकते हैं, दैट इज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जूनियर ग्रेड A. Then you can fill up Puducherry and Armed Force Headquarter Section B services. अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है and you are getting the ranks within the 400, आपको टॉप 10 में से जॉब मिल जाती हैं. तो this is all about how to fill up the DAF. ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा and it is very very important for your exam. Now what exactly is a personality test? Personality test means they already checked your knowledge, so it is not a knowledge test.
Some people are saying, I should come to Delhi. It is a personality test. I should prepare hard. Yes, you should prepare, but personality should not be prepared. It is a personality test. पहले दिमाग में डाल लो. It is not an interview which you are doing when you are searching the groom and brides. Personality test means personality trait. Honest, humble, apolitical. Objectivity should be high. And if anybody is asking some question, your response time should be very less and your reflex, observation power should be very strong. Sometimes they are asking, you are coming from outside, which plants, how many flower, what is the color of your back wall, observation thing. तो वो आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स को चेक कर रहे हैं. Even sometime you are not giving the answers of 40-50% of the question, students scored 200 plus marks. That means it is not at all the overall test of knowledge. If you see the final list, so many people are getting similar marks. 171, 192, 167, 214, 223, 22. Why different boards are giving same marks? Is a coincidence or some logic? Logic is that they are having a list. Main chairman of the board is having the power to fill up that list. Every list is having some marks, 10, 15, 20. उन सबको कैलकुलेट करके आखिरी में टोटल स्कोर निकलता है. You are from any category, if you score 170 plus, you are always safe. If you are in a general category, always try to score more than 180 marks. Some basic rules. When you enter the door, always say, may I come in? Second, walk confidently in the overall interview chamber. It is a semicircular where the whole body is visible. Sit comfortably with a straight back. If you are having the habit to move your hands, when you are giving the correct answer, your hands will move very fast. When you are dull, you are looking like this. So how to fake it? Make your hands over your knees, sit straight, no excitement. Both questions, whether you are knowing or not knowing, your body will look same. Greet first chairman. If some woman, ma'am, and third greetings to others. So good morning sir, good morning ma'am, and good morning all. Eye contact is always important. If you are talking with one board member or chairman, eye contact 70% time, but 30% time you should contact with other members. That they should also feel that in your overall conversation, they are also the participants. Now these all are the part of the personality test. If you are not doing anything, they are the elder people. What elder people demands? Respect, acknowledgement, acceptance. Accept sir, nahi yaad aa raha. There is nothing called any type of problem in this. Sir, nahi yaad aa raha, insaan hu. Sir, पढ़ाई नहीं आज तक. आप बता दीजिए, घर जाके पढ़ूंगा. So your overall conversation should be very humble, very respectful, and you are acknowledging that yes, you are not knowing everything, but yes, you are knowing most common things. That means historical events should be there in your mind. Whatever basics about your graduation and graduation subject should always be there in your mind. Your optional and the basic of your optional and thinker should always be there in your mind. Otherwise, they should feel कि आपने अपने ये subject भी अच्छे से ready नहीं किए थे. Whatever contemporary issues are going on, you should know the analysis. 2 or 3 points of correct, 2 or 3 points of negative, even you should know the way forward. So whatever in the mains you are preparing the form of way forward, it is a mini interview answers in the form of way forward. आप क्या करोगे? Then synchronization. उन्होंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, वो इस तरह का एक जाल बिछाते हैं. So they are asking the first question. In the first question, they simply ask, कि मिस्टर व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान. आफ्टर 4-5 क्वेश्चन वो आपसे फिर पूछेंगे यू आर अ डीएम, हाउ यू कैन मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन. तो आपका जो पहला आंसर था और 20 मिनट बाद वाले आंसर दोनों क्या होने चाहिए? सिमिलर. ओनली देन दे कैन नो योर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी. अदरवाइज दे विल फील यू आर अ बुकिश पर्सन और अ फेक पर्सन जो कभी कुछ जवाब दे रहा है, कभी कुछ जवाब दे रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? So these are the things you people should understand what they really want to ask in the interview. They want the answers, they want the solutions from you. They are giving you एक simple पूछेंगे, who is a friend according to you belong to this country. भारत का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? अब यहाँ पर आप कुछ फनी आंसर भी दे सकते हो कि सर भारत का सबसे बड़ा दोस्त भारत खुद है. फिर वो हंसने लग जाएंगे कि अरे वाह. तो you should also make some of the answer like this that they will feel smile. फिर वो थोड़ा modify करेंगे. मॉडिफाई क्या करेंगे? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में कौन इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेंड है? तो आप बोलोगे सर इजराइल है, जापान है, रशिया है.
आप जो भी नाम लो, whatever name you want to, that is a fill up the gap, this fill in the gap, but you should have the proper reasoning. Why this person is better friend than Russia? Why Russia is a better friend than Israel? Why Israel is better friend than the Japan? Because they are asking for every question, 2 level of question. आप जो भी आंसर दोगे उसके बाद और एकदम कट कर देंगे. तो they are not giving you the time to speak more. वो एकदम कट लगा के नया क्वेश्चन पूछ लेंगे. That means your answer would be very small, very crispy, और आप हर आंसर में कुछ की वर्ड डाल कर दो जिससे वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे. एंड दिस थिंग इज कमिंग थ्रू प्रैक्टिस एंड कन्वर्सेशन. For all these things, that's why in particular, that is Aspire, we are conducting some of the interview sessions in which we are giving more emphasis on conversation skills through parliamentary sessions, one-to-one sessions, detailed analysis about the overall, that is a resumes, DAF, detailed application form, crafting the proper and the most prominent questions, जहाँ से वो question पूछे जाएंगे, and all these things we are helping you without any type of charges or anything because we believe that you are in the last step. यहाँ आप हारे ना. तो I am having the 18 years experience in this particular UPSC preparation field. So I am just sharing my experience with you that what type of thing you should maintain, because ultimately it is one of the easiest but very crucial step where you should not watch the interview of other people. You should not know over information about the different boards and their chairperson. ये कुछ myth हैं जो बच्चे करते हैं, उससे आपका mind prejudice हो जाता है. And make it sure before the final personality test, you should not give more than 5, 4 or 5 mocks. 4-5 मॉक से ज्यादा आपको मॉक नहीं देने हैं. अदरवाइज यू आर कंफ्यूज. somehow you are not in a condition to know. और जो बच्चों का पहले लैब में है उनके लिए अच्छा है, बट दोज हु आर वेटिंग फॉर 2 months उनको पेशेंस मेंटेन रखना है. दे कैन रीड फॉर देयर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एनीथिंग. रीड द न्यूज़पेपर बट डोंट ओवर फोकस ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट से 45 डेज पहले आपका करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, न्यूज़पेपर रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए. एंड यू पीपल एटलीस्ट रीड 2 न्यूज़पेपर, one is Hindu, one is Indian Express, to build up your own knowledge. So this is all about some of the preliminary guidelines for those people who are preparing the personality test or those who will give the personality test in 2024-25 and they're watching this video. If you are having any type of doubt, just SMS us, WhatsApp us, our team and me myself will help you. Thank you so much. Jai Hind.